A very good morning, students. Welcome to e-learning classes. In the previous lecture of economics, we are done till the law of DMU, diminishing marginal utility, along with its assumptions. Now, today's lecture, we are going to cover about the meaning of consumer equilibrium, assumptions of consumer equilibrium in case of two commodity and one commodity, and last, that is the limitation of utility analysis. Let us discuss one by one. The very first topic, that is the concept of consumer's equilibrium. That means what is the meaning of consumer equilibrium. Consumer equilibrium refers to a situation where a consumer gets maximum satisfaction. It is a particular place, it is a particular point where the consumer is able to get the maximum satisfaction out of his given income, है ना. वो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड आउट करता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है. एंड नाउ ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. अब उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि जो उसने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर अपना एक बंच बनाया है एक्सपेंडिचर का, उसको वो किसी भी हाल में चेंज करे. सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ consumer equilibrium. If a particular person, if you are offering some of the good to the particular consumer and the particular consumer is ready to buy it, or that particular consumer purchase it, that means the particular person is not in the was not in the condition of consumer equilibrium. That means first condition, that is a maximum satisfaction, second condition with the using of given income, and the third condition that there must not be any tendency of change. Now, the next topic, assumptions related to the consumer's equilibrium. The first assumption, that is the rational consumer. What is the meaning of rational consumer? That means consumer is having a mind and the consumer is always having a motto, and that is the attaining of maximum satisfaction. So every of the act of the consumer will be towards the achievement of maximum satisfaction. Second one, cardinal utility. The second assumption states that the whatever satisfaction we are getting from the consumption of any good or services, that can be calculated, that can be counted in the cardinal numbers such as 1, 2, 3. Next assumption, independent utility. It is assumed that the utility that a consumer gets from a commodity is independent or free from the consumption of any other commodity. That means if we are consuming more than one commodity, so whatever satisfaction we are getting from the first commodity, that is only dependent with the first commodity. It will be not affected by the consumption of second commodity. Every commodity is having its own scale of utility. Next, marginal utility of money is constant. Now this is the new term for you people, marginal utility of money, and that is denoted by MUM. किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? MUM से. According to this assumption that it always remain constant, but here arise a question, what is marginal utility of money? So it refers to the worth of 1 rupee to a consumer. 1 रुपी की जो वैल्यू एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए होती है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ money. Now, the marginal utility of money depends upon the different category. For example, if we talk about a beggar, सो इन दैट कंडीशन फॉर अ बेगर, है ना, जो एक भिखारी एक बेगर है, उसके लिए 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. बट इन द सेम वे इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट अस, तो शायद हमारे लिए 1 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट अ वेरी रिच पीपल, अंबानीज, बिलेनियर्स की अगर हम लोग बात करें, तो उनके लिए शायद 1000 रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए 1 रुपये की जो वैल्यू होती है इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. Now we are coming to the consumer equilibrium. We will study about the consumer equilibrium in two cases, one commodity case and two commodity case. But before starting any of the condition of the consumer equilibrium in one commodity case, see, purchase of a commodity by a consumer depends upon three factors. Whenever a particular consumer purchases a commodity, it always make emphasis on 3 points, or 3 points are always be remembered. The very first, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सबसे पहले जो हम लोग चीज़ कंसिडर करते हैं, दैट इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी. दैट मीन्स व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी. सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. दैट मीन्स व्हाट द सेटिस्फैक्शन वी विल गेट व्हेन वी विल एडिशनली व्हेन वी विल सेकेंड टाइम यूज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. एंड द लास्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी.
सो दीज आर द थ्री एलिमेंट जो कि जिनको हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, उनको ध्यान रखने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, कमोडिटी परचेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर इवेंट एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर यूनिक ड्रेस कॉम्बिनेशन. एक बहुत यूनिक ड्रेस कोड वहाँ का है, एंड यू फाइंड कि भाई जो थीम है वो अब दोबारा यूज़ नहीं होगी. सो इन दैट कंडीशन इफ़ यू आर गेटिंग दैट ड्रेस of particular 10,000, so in that condition you will not purchase that amount, that price, that commodity, that dress. Why? Because its marginal utility of is very less. क्योंकि जो ड्रेस कोड आज है वो आपको शायद ही कभी दोबारा किसी और फंक्शन में वो सेम ड्रेस कोड देखने को मिलेगा, तो आप उस पर 10,000 रुपीज़ को एक्सपेंड आउट नहीं करोगे. दिस इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. नाउ इक्वेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. यू कैन सी इन द बॉक्स, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM. व्हाट इज MUX? MU हम लोग को पता है मार्जिनल यूटिलिटी, और X क्या है? X इज द पर्टिकुलर गुड जिसके बारे में बात कर रहे हैं. इफ़ आई विल टॉक अबाउट पेन, देन इट विल बी MUX किसका? MU किसका? पेन का. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट पेंसिल, देन इट विल बी MU पेंसिल. तो X इज द पर्टिकुलर कमोडिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. PX दैट इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड इज इक्वल्स टू MUM दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. जहाँ पे इक्वेशन इक्वल होगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसको हम लोग एक शेड्यूल की हेल्प से देखते हैं. एक एग्जांपल लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है कंज्यूमर के लिए 4 यूटिल्स है. ठीक है. दैट मीन्स MUM इज इक्वल्स टू 4. और जो प्राइस कमोडिटी कंज्यूमर यूज़ कर रहा है उसकी प्राइस कितनी है? 2 रुपीज़ पर यूनिट. कितनी है बेटा? 2 रुपीज़ पर यूनिट. एक शेड्यूल लिया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये देखिए आप लोग, यूनिट्स दे रखी थी हमें, MUX दे रखी थी, हमने एक कॉलम खुद ऐड किया है, दैट इज़ MUX अपॉन PX. अब हम इसको क्या करेंगे? इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमको ये इक्वल करना है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, और MUM कितना गिवन है? 4 गिवन है. तो हमको यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हमें 4 के बराबर मिलेगी, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. एंड वी कैन सी ओवर हेयर एट द 4th यूनिट वी आर गेटिंग MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू 4, एंड द MUM गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑल्सो 4. सो दैट इज वाई वी कैन कंसिडर दैट व्हेन कंज्यूमर will consume 4 unit, the particular consumer will be considered in the equilibrium. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप इसका देखेंगे. एक ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं बेटा, दैट इज़ द PX, प्राइस ऑफ X कमोडिटी कांस्टेंट रही है ना. प्राइस 2 रुपीज़ था, वो स्टार्टिंग से एंड तक 2 रहा. और अगर हम लोग MUX की बात करें तो MUX वॉज डिक्रीजिंग. वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था. और आई हैव टोल्ड यू वेन एवर अ पर्टिकुलर वैल्यू डिक्रीज, तो उसका जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड आएगा. सो वेर एवर बोथ ऑफ दीज लाइन विल इंटरसेक्ट, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड C is the intersecting point, and that is it is considered as the point of equilibrium. ठीक है. So this is all about the consumer equilibrium in one commodity. Now we are coming to the consumer equilibrium in two commodity case. So there are two equations over here. The first one, MUX, हमको पता है MUX क्या है, upon PX, we know about the PX is equals to MUY. MUY क्या है? हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. फर्स्ट कमोडिटी इज X एंड द सेकेंड कमोडिटी इज Y. सो MUY इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी अपॉन PY, दैट इज द प्राइस ऑफ Y कमोडिटी, इज इक्वल्स टू MUM. This is the first equation, and wherever the first equation will be applied, we will put on the second condition, and where both of the condition will be favorable one, that particular point will be considered as a consumer equilibrium. And what is the second condition? Second condition is a budget constant. What is the budget constant? इसका मतलब ये कि जो भी combination का set बनाया है X और Y का, वो consumer के budget में आना चाहिए. That means the PX, price of X, into QX, that is the quantity of X, इसको हम प्लस करें किस पे? PY into quantity of Y, तो ये हमारे पास अवेलेबल मनी के बराबर आना चाहिए. इसका मतलब X पे कंजम्पशन प्लस Y पे कंजम्पशन मस्ट बी इक्वल्स टू द मनी दैट इज अटेन्ड बाय द कंज्यूमर. एक शेड्यूल देख लेते हैं हम लोग. शेड्यूल की हेल्प से इसको समझते हैं बेटा. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. एग्जाम्पल में पहला पॉइंट हमने जो एज्यूम किया, दैट प्राइस ऑफ X एंड Y कमोडिटी इज़ 1 रुपी पर यूनिट. दोनों कमोडिटी X और Y दोनों की प्राइस कितनी है? 1 रुपीज़ है. X की यूनिट खरीदोगे तो भी 1 रुपये में मिलेगा, Y की खरीदोगे तो भी 1 रुपये में मिलेगा. एंड कंज्यूमर इज़ हैविंग 10 रुपीज़, और कंज्यूमर के पास जो मनी अवेलेबल है दैट इज़ M इज इक्वल्स टू 10 है. ठीक, हमको एक टेबल दे रखा है यूनिट्स MUX और MUY, और लास्ट के 2 कॉलम्स हम लोगों ने एडिशनली खुद क्या किए हैं? एड ऑन किए हैं. दैट इज़ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी MUX अपॉन PX
इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो हमने दो कॉलम बना लिए, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, और सेकेंड कॉलम बनाया एम यू वाई अपॉन पी वाई, और हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। कोइंसिडेंटली जो प्राइस थी वो 1 थी, इसलिए वैल्यूज सेम रही। अब जहाँ पे ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, वहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को पुट ऑन करेंगे। तो अगर हम इस पूरे स्केड्यूल में देखें तो हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम हैं, दैट इज़ कलर्ड विद द लाइट पिंक, that is 10 and 10. Mux upon Px is equals to 10 and Muy upon Py is equals to 10. Now here we will put the second equation, that is the budget constant. Mux upon Px की बात करें तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में कितनी यूनिट्स है बेटा, 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया, नीचे बजट कांस्टेंट देखेंगे 4 इंटू 1। और अगर हम लोग Muy अपॉन Py की बात करें तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में यूनिट कितनी है, 6, तो 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10, और हमारी m की वैल्यू भी कितनी थी बेटा, 10। सो इन द कंडीशन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट ऑफ x कमोडिटी एंड द 6 यूनिट ऑफ द y कमोडिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका स्केड्यूल से प्रेजेंटेशन किया। नाउ अगर हम लोग इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाया है। MUX is represented by green color and MUY represented by blue color, and wherever both of the lines will intersect, that point will be considered as a point of equilibrium. In this diagram, Q is the particular point of equilibrium. This is all about the consumer equilibrium in two commodity case. Here comes a particular small point, that is law of equimarginal utility, and according to this law, consumer will be in equilibrium where MU फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट विल बी इक्वल फ्रॉम एक्स एंड वाई कमोडिटी, है ना। दोनों कमोडिटी से मिलने वाली जो आपकी क्या होती है, लास्ट रुपी की जो मार्जिनल वैल्यू होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जब एक्स और वाई की सेम होती है, दैट इज़ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एंड कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम ओवर देयर। एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है, एंड दैट इट इज़ नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड मेजरमेंट क्राइटेरिया, है ना। ये जो क्राइटेरिया है कि हम लोग मेजर कर रहे हैं, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर। ये डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ए को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा हो सकता है और बी को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कंपैरेटिवली कम हो सकता है। देयर इज़ नो सेट हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग दिस। दिस इज़ ओनली द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।